Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. The subject is operation management. And lecture is 5, week is also 5. Our topic is product and service design. Dear students, you know well what is product. Product is an article or substance that is manufactured or refined for sale. कोई सब्सटेंस को किसी आर्टिकल को प्रोडक्ट कहते हैं. A thing that is the result of an action या process. कोई चीज किसी चीज को प्रोडक्ट कहते हैं. Product is also a good idea, method, information, object या services created as a result of process and services. A need या satisfy a want. For example, a seller of toothbrush not only offer the physical product but also the idea that consumer will improving the health of their teeth. यानी ऐसा आइडिया कि टूथब्रश कंपनी बनाती है, उसमें आइडिया देती है कि इंसान अपने दांतों को साफ भी कर सकता है. आइडिया. दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट. And there you know well what is service. The action of helping or doing work for someone. कोई एक्शन या कोई काम किसी के लिए करता है तो उसको सर्विस कहते हैं. A system supplying a public need such as transport, communication, utilities such as electricity, water, hospital, this is providing services. And design, what is design? Design is a plan or drawing produced to show the look and function of the working of the building. Design is a decorative pattern. Table of contents are product and services design, legal, ethical, and environmental issue, regulations, and legal consideration. Designers adhere to guidelines. Excuse. Issues in product and services design, life cycle of product and services, standardization, mass communication, delayed differentiation, modular design, improving reliability, product design, robust design, reverse engineering, research and development, concurrent engineering, computer aided design, recycling, and reliability. The learning object is a product and service design, legal, ethical, environmental issues, regular and legal consideration, design adhere to guideline. Issues in product and service design, life cycle of the product and services, standardization. Students, you will, after learning this lecture, you will be able to understand the product and service design, issues in product and service design, life cycle of product services, research and development, concurrent engineering, computer aided design, recycling, and reliability. Productivity. This topic was in the previous lecture for productivity. Now we revise the productivity. Productivity is concerned with the effective and efficient utilization of resources, inputs in producing goods and services output. यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इनपुट आप देते हैं जिससे आउटपुट हासिल करते हैं. इनपुट मटेरियल हो गया, आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज हो गई. इन द अदर वर्ड, प्रोडक्शन इज द क्वालिटी ऑफ ए आउटपुट प्रोड्यूसिंग वाइल. प्रोडक्शन क्या है जी? क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. और प्रोडक्टिविटी क्या? इज द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड टू द इनपुट. Use productivity the index that means output of goods and services relative to the input.
material, energy, and other resources. Productivity is the outdoor input. Product and the service design. Major factors in the strategy or in product and service design are cost, quality, time to market, customer satisfaction और competitive advantages. मेजर फैक्टर कौन है, क्या है प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी के मेजर? पहले है कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए, कॉस्ट का पता होना चाहिए कितना, टाइम टू मार्केट, टाइम पर मार्केट करना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हो, और कंपीटेटिव एडवांटेज और अदर जो कंपेटिटर हैं उससे हमें एडवांटेजेस भी होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ट्रांसलेट कस्टमर वांट्स एंड नीड्स इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट, इन कस्टमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना चाहिए प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट उसको या जो सर्विस उसको रिक्वायर्ड हैं। रिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको रिफाइन करना चाहिए। डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नई प्रोडक्ट और सर्विस को भी डेवलप करना चाहिए, वो किया जाता है, ये एक्टिविटीज़ हैं। और फार्मूलेट क्वालिटी गोल, गोल जो अचीव है, क्वालिटी की प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो भी फार्मूलेट क्वालिटी होनी चाहिए। फार्मूलेट कॉस्ट टारगेट, कि कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी, ये हमें फार्मूलेट करना चाहिए कि ताकि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए हमारी कॉस्ट कितनी है। कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट प्रोटोटाइप, कि हमें एक उसकी एक प्रोटोटाइप एक कॉपी करनी, टेस्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चले। डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, के डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और अदर चीज़ें, स्पेसिफिकेशन जो है प्रोडक्ट और डिज़ाइन के हिसाब से वो लिखी जाती हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। रीज़न फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या रीज़न हो सकते हैं? इकोनॉमिक रीज़न हो सकती हैं, सोशल एंड डेमोग्राफिक हो सकती हैं, और पॉलिटिकल लायबिलिटी या लीगल हो सकती हैं, कम्पिटिटिव हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकती हैं। ये रीज़न थी हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन के लिए, इस वजह से हम प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है? मेन फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेन फोकस ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे फोकस होना चाहिए हमारा। सेकेंडरी फोकस किस चीज़ पे? फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज पे, कॉस्ट या प्रॉफिट पे, क्वालिटी पे, अपीयरेंस पे, प्रोडक्ट की अपीयरेंस पे, ईज़ ऑफ प्रोडक्शन पे, असेंबली पे, यानी प्रोडक्शन आसानी हो, ईज़ ऑफ मेंटेनेंस सर्विस, यानी आसानी हो मेंटेनेंस सर्विस, प्रोडक्ट की मेंटेनेंस सर्विस के लिहाज से आसानी हो। लीगल एथिकल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं? लीगल है जी FDA, OOSH, और you know well what is the FDA? FDA is a Food and Drug Administration. F for food, D for drug, A for administration. Food and Drug Administration is a federal agency of the United States Department of Health and Human Services, one of the United States federal executive department. Executive department है food and develop food and drug administration का। और OSH क्या है? What is OSH? OSH is O for occupational, S for safety, and H for health, and A for administration. Safety and health, occupational safety and health administration of the United States Department of Labor, formed by the Occupational Safety and Health Act 1970, 1970 में एक्ट बनाया गया। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट की लायबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड होना चाहिए। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड? It also called UCC. UCC is a standard set of laws and regulation for transacting business. The UCC code was established because it was becoming increasingly difficult for the companies to transact business across state lines given various state laws.
तो यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड बनाया गया। Ethical issue, releasing product with defect, product defect without defect हो, और environmental है जी EPA. EPA, what is EPA? EPA is the Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency was established in December 1970 by the executive order of the President Richard Nixon. It is an agency of United States federal government whose mission is to protect human and environmental health. क्या प्रोटेक्ट करती है EPA? ह्यूमन को और इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करती है। रेगुलेशन एंड लीगल कंसिडरेशन क्या है जी? प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ए मैन्युफैक्चरर इज लायबल फॉर एनी इंजरी या डैमेज काज बाय द फॉल्टी प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में कोई इंजरी, कोई टूट फूट हो तो उसकी लाइबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की, वो रिटर्न करेगा। यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, UCC, already I have discussed. Product carry an implication of merchantability and fitness. Fitness हो प्रोडक्ट में। डिज़ाइन एडहेयर टू गाइडलाइन के स्टिकी होना चाहिए डिज़ाइनर को, इन गाइडलाइन पे ये फॉलो करना चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन दैट आर कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के गोल के मुताबिक हो प्रोडक्ट डिज़ाइन। गिव कस्टमर द वैल्यू द एक्सपेक्ट, कस्टमर को वैल्यू जो एक्सपेक्ट करता है। मेक हेल्थ एंड सेफ्टी इन प्राइमरी कंसर्न, हेल्थ और सेफ्टी प्राइमरी कंसर्न है। कंसीडर पोटेंशियल हार्म टू द एनवायरनमेंट, पोटेंशियल हार्म तो उसको कंसीडर करना चाहिए। और अदर इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द अदर इश्यूज? प्रोडक्ट सर्विस लाइफ साइकिल, हाउ मच स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट सर्विस रिलायबिलिटी, रेंज ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशन, and this is the life cycle of the product. You know well, this is introduction, the start is introduction, then product growth and maturity. After maturity it's saturated, and then after saturation it will decline with time. You know well the life cycle of the product. Standardization, standard extent to which there is an absence of variety in product, service or process. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द कस्टमर, के कस्टमर को जो प्रोडक्ट दीजिए स्टैंडर्डाइजेशन हो उसमें। मास कस्टमाइजेशन क्या है? मास कस्टमाइजेशन ए स्ट्रेटजी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड गुड या सर्विसेज बट इनकॉर्पोरेटिंग सम डिग्री ऑफ द कस्टमर delayed differentiation, modular design, standardized goods or services provide a mass communication है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो कस्टमर के लिए। और डिले डिफरेंशिएशन और मॉड्यूलर डिज़ाइन ये हम पढ़ेंगे। डिले डिफरेंशिएशन इज द postponement tactic. What is postponement tactic? The producing but not quite completing a product या services until customer preference या specification are known. जब तक customer की preference या specification known ना हो तो उस वक्त तक product produce नहीं होनी चाहिए। Modular design क्या है जी? Modular design is a form of standardization in which component part and the subdivided into the modules that are easily replaced या interchangeable, के उसको ऐसा डिज़ाइन हो कि इंटरचेंजेबल हो या रिप्लेस हो जाए प्रोडक्ट। सब डिवीजन उसके होने चाहिए। इट अलाउज ईजियर डायग्नोसिस एंड रेमेडी ऑफ फेलियर, क्या इजीली डायग्नोज हो जाए कि उसमें क्या फेलियर है, और इजीली रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के आसानी से उसको रिपेयर और रिप्लेसमेंट किया जाए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली बनाने में सिंप्लीफिकेशन हो। इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी के कंपोनेंट डिज़ाइन कि उनके कंपोनेंट को डिज़ाइन करना चाहिए। प्रोडक्शन असेंबली टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। टेस्टिंग हो, रिडंडेंसी या बैकअप हो, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर हो।
यूजर एजुकेशन, एजुकेशन जो यूज कर रहा है उसको एजुकेट किया जाए। सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रोबस्ट डिज़ाइन, concurrent engineering, computer aided design, and modular design. These are the. And what is robust design? Robust design is that result is produce a service that can be function over a broad range of condition. That has function of broad range of condition. And reverse engineering is the disseminating and inspecting of the competitor product or discover product improvement. कि उसको ऐसे डिसेमिनेट उसको किया जाए या उसको ऐसे इंस्पेक्ट किया जाए ऑफ द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट टू डिस्कवर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, कि उसकी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट हो सके, री इंजीनियरिंग हो सके या रिवर्स री इंजीनियरिंग हो सके। Research and development R&D organize effort to increase scientific knowledge of product innovation and may involve scientific knowledge होना चाहिए product innovation में। Basic research advances knowledge about the subject without near term expectation of the commercial application के basic knowledge होना चाहिए। और applied research के achieves commercial application, कि जो commercial application के किस तरह commercialize करना है उसका applied research होना चाहिए। और डेवलपमेंट कन्वर्ट्स रिजल्ट और अप्लाई रिसर्च इनटू द कमर्शियल एप्लीकेशन, जो रिजल्ट को कन्वर्ट किया है उस डेवलप कन्वर्ट रिजल्ट अप्लाइड, अप्लाइड को जो कन्वर्ट किया है रिसर्च इनटू कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन में उसको यूज करना चाहिए। यानी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर वो उसको कमर्शलाइज करनी चाहिए प्रोडक्ट को। और कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या है, इज द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल अर्ली इन द डिजाइन फेज। कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या है जी? कंकरेंट इंजीनियरिंग इज द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन को इकट्ठा और मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल को इकट्ठा किया जाए अर्ली इन डिजाइन फेज, स्टार्ट में, डिजाइन फेज के स्टार्ट में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड इज द प्रोडक्ट डिजाइन यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक, इसमें कंप्यूटर ग्राफिक यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट की डिजाइन में। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ डिजाइनर 3 to 10 टाइम्स, वो जिससे 3 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है प्रोडक्टिविटी। क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट, स्पेसिफिक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। प्रोवाइड possibility of engineering and cost analysis on the proposed design. Recycling, what is recycling? Recovering material for future use. Recycling reason cost saving, यानी फर्ज के एक चीज़ है उसको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, जिसमें शॉपर की रिसाइकलिंग हो जाती है, शॉपर ज़ाया ना हो, या मटेरियल ऐसा बच जाता है जिस रिसाइकिल करके प्रोडक्ट दोबारा बनाई जाती है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेव हो जाती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंट में उसकी पोल्यूशन होती है, वो चीज़ इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करती। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी यही कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट ऑफ सिस्टम टू परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शन अंडर ए प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन के तहत फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फेलियर सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट पार्ट या सिस्टम डज नॉट परफॉर्म एज इंटेंड, अगर वो परफॉर्म ना करे तो फेलियर हो जाता है प्रोडक्ट का। एंड नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन इज द सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच एन आइटम रिलायबिलिटी इज स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड रिलायबिलिटी हो, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट is a probability, reliability is a probability, probability that product is system will function when activate, उस वक्त फंक्शन जब एक्टिवेट हो, फंक्शन फॉर गिवन लेंथ ऑफ टाइम, एक टाइम के मुताबिक फंक्शन होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स हुज occurrence या नॉन occurrence डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, ऐसे इवेंट जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी जिस पर असर ना हो। रिडंडेंसी, द यूज ऑफ बैकअप कंपोनेंट ऑफ द इंक्रीज रिलायबिलिटी। इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, कंपोनेंट डिजाइन, कंपोनेंट को डिजाइन किया जाता है। प्रोडक्शन असेंबली टेक्निक्स, ऑलरेडी वी हैव टेस्टिंग, रिडंडेंसी, बैकअप, और preventing maintenance procedure, use education and system design we have already. And assignment is a what designing techniques you will recommend that have
greater applicability for design of products than design of services. You have to uh, give the techniques you will recommend. What techniques you will recommend? Thank you, student. Allah Hafiz.